Am I audible? Abhijit, am I audible or not? Yes, audible. Okay, okay. Screen is visible to you, to all you all not? No? Screen is visible or not? Visible, sir. Okay, okay. The very purpose of this session is to discuss this SBI. Is not only to discuss the questions of SBI CVO, but it is also a reason that you should get a glimpse of the paper, that you will get to know that most of things whatever you are getting online in various portals are completely irrelevant for the purpose of CBO. I already said in the first lecture when the introductory lecture was there that this is you should consider it as a scale 1 exam, not as a exam which is for internal promotion exam or scale 2, 3, 4 exams. You should know that this paper uh, is mean to say that SBI CBO paper is very much similar to PO, but varies in one aspect that some core banking portion is asked in this exam. All other things uh, with PO is similar. You have a benefit that the quant portion is not asked, and reasoning in CBO exam is comparatively much easier than of SBI PO exam. Then should we start the session? Yes, sir. Okay, as I am sharing the screen, that's why I'm not sharing my video, because it will take a portion of screen and will be viewing continuously to me. That will be difficult for me to concentrate. Okay, okay. Hope all of you are comfortable and we will starting the session. Note that this question was generally when students attend the exam and send the questions for the answer. They generally send that, sir, this was asked. Sir, one question on civil law asked. Then I have converted this into form of a questions and I am discussing it. Further, in between, I will be guiding you what you need to study and what you shouldn't completely what you will see all the 3 years. You will find that there is nowhere where core birthing, even the no sections were asked, huh? Sections were also absent that you are studying in NIA Act, RBI Act, huh? BR Act. Even RBI Act for some sections was there, but BR Act only when year was asked, nothing more. Okay, we should move towards our session. Note that here is most important thing. I hope all of you have viewed that PDF which have been shared in the group. This PDF I will share publicly also so that most of the students get benefited from it. For those who have I have cancelled the enrollment, I have not taken the enrollment. They might have be looking for, and that's why I will be sharing this too. But first, I have preferred you because you are very specific to me that you have got enrolled and acceptance to the enrollment. Further, focus below topics to ensure good marks in CVU exam, events, national, international importance. It is also asked in PU exam. You should know that. Okay. Government schemes. One PDF I am also preparing. Hopefully, within 3 or 4 days, I will be releasing it. Some other government, although I have shared all the things in government schemes, but some specific things I will be sharing which are relevant and which are expected to come. Oh, okay, one PDF I have shared which are most expected, that is a master book. Have you completed that master book or not? Everyone completed that master booklet. You should revise a number of times to this booklet. Okay, do not go through that studying very tough questions. That note that the fear is the biggest enemy of yours. The people who are teaching in other portals or online will create an environment of fear. Okay,
you will see that you will be feeling that you didn't study. वो आपको ऐसा बताएंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, वो कहीं से कुछ और सा सेक्शन उठा के लाएंगे, पूछेंगे कंपनी से का कोई सेक्शन पूछेंगे, ये इररिलेवेंट है, बस दे जस्ट शो दैट यू आर वेरी फार फ्रॉम द सिलेक्शन. That's why in fear you will be enrolling in number of courses and you will be deviating from your path. Focus on your goal, okay? Whatever I have advised, uh, is just not only my experience, but the students who have got selected from me, even in this group, there are a number of candidates. I think there are 4 or 5 students. Okay, those for them admissions were possible only because the earlier students requested for them. Okay, that's why you know that selection is not the way of studying very hard and very tough things. Getting selection is the an art, and in which you will study the relevant things. Focus on relevant things. Okay, we will be moving towards our session further. What the question was asked, what is CIBIL score and what constitutes maximum and minimum CIBIL score? कोई बता सकता है क्या कि सिबिल स्कोर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 300 to 900. ओके, पंकज, व्हाट यू आंसर्ड? Yes, sir. 300 to 900. ओके, 300 to any more answers? सर 300 to 900 ही रहता है. Okay, any more answers? Have you heard about -1? यस सर Yes, -1. sir. -1 भी होता है. Okay. इसने कभी नहीं If लिया. there is, yes means अगर किसी पर्सन का, अच्छा सिबिल स्कोर होता क्या है? सिबिल स्कोर, सिबिल का फुल फॉर्म बताइए, मैंने इससे पहले लेक्चर में पूछा था, ये पूछा जा सकता है. व्हाट इज एल रिप्रेजेंट्स इन सिबिल? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड. यस, वेरी नाइस. तो सिबिल आप देखोगे उसका पूरा रिपेमेंट, पूरे लोन की डिटेल्स, पूरे एड्रेस की डिटेल्स, सब कुछ आता है उसका, जो बंदे ने लोन लिया हुआ है. अगर आप किसी लोन के पहले, अच्छा ये सिबिल क्यों पूछा गया एग्जाम में? आपको पता है कि अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं तो सिबिल सबने देखा ही होगा. अगर आप क्रेडिट के साथ काम कर रहे हैं, यू आर एन ऑफिसर, इवन नॉट वर्किंग विद क्रेडिट, देन यू माइट हैव बीन अवेयर ऑफ दैट सिबिल स्कोर. इस Yes, वजह sir. से भी ये पूछा गया कि ये रेगुलर बैंकिंग ऑपरेशंस में यूज होता है. अभी आप जैसे जैसे आप इसके साथ जाते चले जाओगे, आपको पता चलेगा कि जो आप बहुत सारी टफ चीजें पढ़ रहे हो उसका कोई यूज नहीं है. हम इसलिए पढ़ते हैं कि इट मे बी ए चांस दैट, और पिछले 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस रहा है सीबीओ का, ऐसा नहीं रहा है कि उसमें बहुत सारे टफ चीजें ऐसा पूछा गया हो. दैट्स वाई बहुत सारे कोर्सेज में आप एनरोलमेंट लेने के बाद ये पाते हैं कि आपने जो पढ़ा वो कुछ तो आया ही नहीं. वो कहाँ से आएगा? वो स्केल 1 का आप एग्जाम देने जा रहे हो और स्केल 3 और 4 और 5 का लेवल का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, नहीं आएगा. If you are going to attend an SSC exam and you are preparing for IIT, JEE and NEET, then how will you get succeed? Therefore, relevance is much important. Take care of it. Okay. तो अगर किसी की पिछले 24 मंथ्स में कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, या रिपेमेंट किए हुए, उसे पेमेंट किए हुए बहुत दिन हो गया, तो उसका कोई स्कोर नहीं आता और वो -1 होता है. मैक्सिमम स्कोर 900 होता है. ओके, ज्यादातर लोगों का क्या होता है, 650 के अराउंड होता है, 700. इससे ऊपर का स्कोर अच्छा होता है. कुछ बैंक्स में क्या है, अभी बैंक के एग्जाम में भी क्रेडिट स्कोर 650 मांग रहा है कि 600 मांग रहा है? 650 सर, मिनिमम 650 मांग रहा है. मिनिमम 650. अच्छा, अगर किसी का 650 नहीं है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है. ठीक है, देयर मे बी ए रीजन, देयर मे बी सम कांस्टेंट, जेन्युइन कांस्टेंट्स, जो आपके सिविल में दिख रहा होगा. आप अपना एग्जाम के फाइनल सिलेक्शन से पहले उसे बंद कर देना लोन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा दिया और आपका किसी, कुछ कई बार क्या होता है, बैंक गलत पैन अपडेट कर दिया है अगर, तो आपके नाम में वो लोन दिखेगा जबकि आपने वो लोन लिया ही नहीं है. यस सर.
suppose bank has updated a wrong PAN number and the person is going to attempt that exam, his score is less than 650, बैंक रिजेक्ट कर देगा क्या? नो चांस, नो रिजेक्ट ही नहीं। ये उसका स्कोर है ही नहीं है एक्चुअल, उसको खुद नहीं पता है ये लोन उसने कहाँ से लिया है। और नए बच्चों को तो क्या पता कि अब ये हम कहाँ से पता करें, कैसे बैंक का नाम तो आता है आपने जहाँ से लिया है, लेकिन अब किस ब्रांच से लिया है, कहाँ से लिया है, कहाँ पे गलत अपडेट है, तो ये डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रियली विलफुल टाइप के डिफॉल्टर है, बैंक में रिजेक्ट, ओके, क्योंकि क्रेडिट डिसिप्लिन नहीं है तो आप क्रेडिट में क्या काम करेंगे फर्दर। तो ये हो गया हमारा सिविल का। सिविल के बारे में आपको पीडीएफ में ऑलरेडी अवेलेबल। अच्छा, ये क्वेश्चन जो सेकंड आया है, वैल्यू ऑफ, ये क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ जीबीपी पूछा था कि जीबीपी, 1 जीबी का आईएनआर कितना मिलेगा। ओके, ये क्वेश्चन तो पहली बात उसने गलत ही पूछ लिया था, ये इतना फुलिश क्वेश्चन है। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट पता है शेयर मार्केट की तरह है। अगर मैं अभी तो आपसे पूछूं ये सब रिलायंस तो का शेयर फ्लिक्चुएट कितने का, फ्लक्चुएट होते रहता है ना ये। हाँ फ्लक्चुएट होते रहते ये। अच्छा, ये क्या है, ये इसने किस वजह से पूछा, एक टर्म होता है कार्ड रेट, आपने सुना होगा अगर कोई फॉरेक्स में काम कर रहा है। कार्ड रेट क्या होता है, हर बैंक के वेबसाइट पे आप जब किसी बैंक का वेबसाइट पे फॉरेक्स कार्ड रेट आप सर्च करके आगे बैंक का नाम डालिए तो उस बैंक का पूरे फॉरेक्स कार्ड रेट आ जाते हैं। ठीक, तो वो कार्ड रेट क्या होता है, पूरे दिन के लिए फिक्स होता है अनटिल मार्केट बिकम्स वेरी वोलाटाइल। मतलब डॉलर में 2 5 पैसे का 10 पैसे का अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसका एक एवरेज निकाल करके, ये मैनुअल नहीं कैलकुलेट करते इन्होंने, सबका अपना अपना तरीका होता है, एक्सेल सीट अपना या एक्सेल में कोई फार्मूला लगा करके, या उनके पास कोई सॉफ्टवेयर होता है उसमें पूरे डिटेल्स डाल करके एवरेज फ्लक्चुएशन लेकर के बता, उन्हें लगता है कि इस रेंज में अगर मान लीजिए 83.40 बोल दिया डॉलर का, तो उनको लगता है कि 83.40 पर अगर हम करेंगे, तो अगर हम कस्टमर से डॉलर लेबर से मतलब उसका कोई, चलिए आउटवर्ड समझा रहे हैं, इनवर्ड तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आउटवर्ड मान लो $1 कस्टमर लेके आया और उसको पैसा देना है, तो उन्होंने कार्ड रेट पे इतना फिक्स कर रखा है अगर, तो उनको लगता है कि इससे ज्यादा पैसा हमें नहीं देना पड़ेगा, मतलब लगभग इसके अराउंड ही, इसके अंदर ही, नीचे ही डॉलर ट्रेंड करेगा। इसको बोलते हैं कार्ड रेट, ये पूरे दिन के लिए फिक्स होता है। इसके पूछने का मतलब कार्ड रेट ही रहा होगा, क्योंकि एसबीआई का एग्जाम है तो एसबीआई के कार्ड रेट से मतलब होगा। लेकिन पता है जब आपका एग्जाम हो रहा होता है तब आप कार्ड रेट देख भी नहीं सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो हाँ, हाँ जीबीपी का तो हमेशा 100 से ऊपर ही चल रहा है इस समय, 101 102 102, अब जितना जाए वो मार्केट पे है। आप अगर आप बोलोगे 101 है या 110 है या 120 है तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर वोलाटाइल हुआ तो वो बहुत ज्यादा जा सकता है। कभी कभी डॉलर की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है तो आरबीआई रुपए को स्टेबल करने के लिए मार्केट में डॉलर को सेल करना चालू करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारा उसका फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया आरबीआई का। तो कैसे कम होता है, अगर इमीडिएट कम हो रहा है तो आरबीआई डॉलर को मार्केट में सेल करता है ताकि उस वैल्यू, उस फ्लक्चुएशन को कवर कर सके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा था, लेकिन क्या है उसमें जो ऐसी वैल्यू दी थी वो वैल्यू ऐसी थी, एक 100 के अराउंड एक ही वैल्यू थी, 100 से ऊपर जो वैल्यू थी, बाकी उससे नीचे थी। तो आप उस, अच्छा इसमें अगर किसी ने कोई क्वेश्चन गलत भी लगाया होगा तो उसको मार्क्स मिले होंगे, ठीक है, क्योंकि हर बैंक का कार्ड रेट अलग होता है। अगर एसबीआई का कार्ड रेट कुछ और है तो पीएनबी का कार्ड रेट कुछ और होगा, बीओबी का कार्ड रेट कुछ और होगा, महाराष्ट्र बैंक का कुछ अलग होगा, आईओबी, सीबीआई, इन सब का अलग अलग कार्ड रेट होगा। तो ये क्वेश्चन तो क्यों पूछा था मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, या किसको पेपर बनाने के लिए दे रहा है आईबीपीएस। तो ये क्वेश्चन उतना ही वैल्यू, हाँ इसमें क्या है कि आपको ये जरूर याद रखना है कि एक्सचेंज क्या होता है, किस तरह से फॉरेक्स एक्सचेंज काम करता है। तो जो फॉरेक्स का पीडीएफ आपको शेयर किया गया, फॉरेक्स पीडीएफ में जितना है उससे ज्यादा पूछा ही नहीं जाएगा, दैट इज मोर देन इनफ। तो आपको अगर एक बार आपने रिवाइज कर लिया है फॉरेक्स का डिटेल तो ठीक है। अच्छा देखो, ब्रांच में आप और क्या काम करते हो फॉरेक्स में,
एनआरई एनआरओ अकाउंट खोलते हो, एफसीएनआर अकाउंट खोलते हो, ठीक है, इसके बारे में भी उसमें दिया गया है और इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं फॉरेक्स का, इफ पॉसिबल, आई विल अपलोड ए वीडियो टू यू, ओके, विद कंप्लीट डिस्कशन। ओके। नाउ, और अगर ये इस वीक के बाहर जाता है आपका एग्जाम, फरवरी के फर्स्ट वीक के आफ्टर जाता है, तो हम फॉरेक्स का एक अलग से फिर से लेक्चर कर लेंगे, ओके, विद सम इंस्ट्रक्शंस कि आपको अभी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इंडियन स्टैम्प एक्ट, तो अच्छा ये बताइए, अभी इंडिया में ये कोई भी एक्ट अगर ये आता है और बोलता है कि ये कहाँ, इंडिया में कहाँ पे अप्लीकेबल है, तो आपको ऑल इंडिया ही करना है, क्योंकि कश्मीर ही था उसमें जो जो है, जहाँ पे नहीं लगता था, कोपरा यस हो सर। गया, ठीक है। तो अभी ये सब काम खत्म हो गया है, ठीक। कब ऑल इंडिया लग रहा है? तो यस। हाँ, तो जो भी लगेगा वो ऑल इंडिया लगेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है, इंडियन स्टैम्प एक्ट क्यों पूछा गया? कोई बता सकता है क्या इंडियन स्टैम्प एक्ट क्यों पूछा गया? मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप अपने स्क्रीन पे भी जूम कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इंडियन स्टैम्प एक्ट क्यों पूछा गया? क्योंकि आप जो डॉक्यूमेंट का स्टैंपिंग करते हो वो भी बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है, और वो इंडियन स्टैम्प एक्ट से रिलेटेड है। फर्दर, स्टैंपिंग कहाँ पे क्यों जरूरी है, कोई बता सकता है? वाई स्टैंपिंग इज कोर्ट इम्पोर्टेंट? कोर्ट में डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए sir। यस यस यस, इट इज लाइक पेमेंट ऑफ फी, एक्चुअली एडवांस पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, बट इट इज ए रेवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। जनरली जो स्टैंप की डायरेक्शंस होती हैं, किससे स्टैंप शुल्क मतलब चार्जेस, स्टैंप फी लेना है या नहीं लेना है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पर्वी में आता है, और उससे उसको रेवेन्यू भी जनरेट होता है। अगर आपने स्टैंपिंग नहीं कराई है, आप उसको कोर्ट में एडमिट नहीं कर सकते उसको, ठीक है। यस। दूसरा, एक चीज और है जिसके केस में आप कोर्ट में एडमिट नहीं कर सकते, वो होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में क्या करते हो आप? रजिस्ट्रेशन में स्टैम्प फी ही तो देते हो, रजिस्ट्रेशन फी, स्टैम्प यस। पे तो वही एक तरह से रजिस्ट्रेशन स्टैम्प का ही एक पार्ट है, स्टैंपिंग का ही एक पार्ट है। जैसे पार्टनरशिप अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो बैंक उनसे रिकवरी रिकवरी तो कर सकता है, उनकी लाइबिलिटी तो बनती है, बट कोर्ट के थ्रू रिकवरी नहीं कर सकता, ओके। बैंक कोर्ट के थ्रू रिकवरी नहीं कर सकता अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो। फर्दर, अब हम आते हैं कि व्हाट इज इंडियन स्टैम्प एक्ट एंड व्हाट इट कवर्स। तो स्टैम्प एक्ट कहाँ पे लगता है, ये बताना जरूरी है। और तो कोई बता सकता है क्या स्टैम्प एक्ट कहाँ पे लगेगा, इंडियन स्टैम्प एक्ट? ठीक है, जैसे कोई भी एग्रीमेंट हो, मोर्टगेज हो, ट्रांसफर ऑफ राइट्स हो, मतलब सिक्योरिटी का ट्रांसफर हो, ठीक है, ऐसी सब जगह पे स्टैंपिंग जरूरी है, विल में जरूरी नहीं होती। आपको पता है विल में क्यों जरूरी नहीं होती? क्योंकि विल कोई एग्रीमेंट नहीं है। विल मतलब उसकी इच्छा है कि हमारे मरने के बाद ये काम किया जाए, ठीक है। यस। वो चाहे तो इस विल को बदल भी सकता है, विल को आप कितनी भी बार बदल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक बार एग्रीमेंट या कुछ साइन करा लिया, स्टाम्प ही पेमेंट कर दिया, तो फिर आप उसको बदल नहीं सकते, आपको फिर से नया ही बनवाना पड़ेगा, ठीक। चलिए, यस सर, इसमें एक एक ईयर भी क्वेश्चन पूछना पूछा। था सर। हाँ स्टैम्प स्टैम्प के रिगार्डिंग, जैसे एक हम्म, इंटरव्यू में सवाल पूछा था हमें कि जैसे रिवाइवल लेटर लेते हैं हर 3 साल के बाद, जो बीसी लेटर होता है हाँ हाँ हाँ, कोई भी लोन में, तो उसमें अगर जैसे हम लोग यस, लगाते हैं रेवेन्यू स्टैंप लगाते हैं पोस्ट ऑफिस वाला, अगर वो ना एगेसिव रहे वाला, तो हाँ क्या? हाँ हाँ, अगर वो ना रहे तो हाँ। क्या अदर और कोई ऑप्शन है इसके रिगार्डिंग कि उसको असाइन कराने हाँ, के लिए कैसे करें अगर देखिए, पोस्टल स्टैंप अच्छा नहीं है? अच्छा, पहली बात तो हम रिवाइवल लेटर पे इसलिए कराते हैं क्योंकि वो एक तरह से वो डेबिट कंफर्मेशन यस। प्लस एग्रीमेंट होता है, ठीक। लेकिन मान लीजिए आपने ये नहीं कराया,
कोई बात नहीं, उस बैंक के वाउचर पे उससे कुछ पैसे जमा करवा के पीछे साइन करा लीजिए कि भाई हमने पैसा जमा कर दिया। जमा करने अच्छा, आप किसी लोन में पैसा जमा कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि नहीं ये लोन है। यस यस। बस वो काम कर सकते हो, स्टैंपिंग नहीं करा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मतलब फर्दर उसमें उनको ये होना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा लोन इतना है डेबिट में, और बस उसके बस लिए बस हमें। इसका, यस, ठीक ठीक। हाँ ठीक है। तो ये कभी कभार इंटरव्यू में, ये इंटरव्यू में बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन तब है जब आप ये बताते हो कि हम लोन वहां पे देख रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी देखते हैं, ये देखते हैं, प्रोसेसिंग देखते हैं, यस तब वो पूछ लेते हैं। ठीक है। फर्दर, यस। अगर आपने स्टैम्प कम पेमेंट किया है या नहीं पेमेंट किया, तो आप पेनाल्टी भर के फिर से पेमेंट करा सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए, बता दीजिए कि सर ऐसा ऐसा गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। अच्छा, ये एक चीज और जानना जरूरी है, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टाम्पिंग पहले कराते हैं बाद में? पहले कराते हैं सर। पहले कराते हैं, एग्जीक्यूशन के पहले। यस। एग्जीक्यूशन के बाद चाहे 100 रुपए की स्टाम्प है, आप 1000 रुपए की स्टाम्प करा दीजिए, वो क्या होगा? इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड। लेकिन अगर यही रजिस्ट्रार पेनाल्टी के साथ आपको परमिशन दे तो क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। वैलिड। ठीक। चलिए, अब एक क्वेश्चन आता है, ये पूछा भी जा सकता है कि अगर एक, सॉरी, अब एक डॉक्यूमेंट क्या है, मान लीजिए 3 डायरेक्टर हैं, एक रहता है यूपी में, एक रहता है एमपी में, एक रहता है चेन्नई में। चलिए, तीनों का साइन चाहिए आपको लोन डॉक्यूमेंट पे। लेकिन यस अब क्या है ना कि तीनों यहाँ पर, देखिए, बैंक में एक चीज आप नोट करिए, जहां पर सिग्नेचर रहता है ना, वहां के नीचे प्लेस जरूर लिखा रहता है, लास्ट में अगर वो है तो। हर पेज पे यस नहीं, हर पेज पे तो हम कराते ही हैं, प्लेस यस। जरूर लिखा रहता है। प्लेस इसीलिए लिखा रहता है, आगे बताते हैं क्यों लिखा रहता है, व्हाई द प्लेस इज कोटेड। अब लास्ट यूपी में फर्स्ट भी उस, रहता, लास्ट में भी रहता है, फर्स्ट में भी रहता है सर, कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, जहाँ पे हो रहा, ठीक, वो तो जो फर्स्ट वाला है उस पे तो पूरा डिटेल ही ऊपर रहता है ना, कहाँ कहाँ हाँ, पे डेट डेट एग्जीक्यूट हो रहा है, डेट प्लेस, डेट हाँ डेट हाँ, डेट डेट के साथ डेट में। भी, डेट के, हाँ हाँ हाँ, वो रहता है। यस। ठीक। चलिए, अब हम बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपको एग्जीक्यूट कराना है, इसमें यूपी में स्टैंप ड्यूटी है, अगर इसको कराओगे एग्रीमेंट आप साइन करा रहे हो, मान लो डीपीएन ही साइन करा रहे हो, जो 100 रुपए का लगना है वहां पे, और एमपी में लगना है 400 रुपए का, और यहाँ पे लगना है 600 रुपए। और आपको, ये बड़ी कंपनी है, आपको वहां पे जाना है। ठीक है। या इस कंपनी का तीनों जगह ऑफिस है, एक डायरेक्टर यहाँ रहता है, एक डायरेक्टर यहाँ रहता है, एक डायरेक्टर यहाँ रहता है, तीनों जगह एग्जीक्यूट कराना है इसको। तो अभी आप स्टाम्प ड्यूटी कैसे पेमेंट करोगे? चलिए, कोई बता सकता है? क्या चलिए मैं एक बताता हूँ। मिनट। हाँ, क्या बोले सर, क्या है क्वेश्चन? ये डॉक्यूमेंट 3 स्टेट में एग्जीक्यूट होगा। ये यस कंपनी का लोन डॉक्यूमेंट है, सब कुछ आपके पास है, 3 स्टेट में एग्जीक्यूट होगा। तो यस। आपको स्टाम्प ड्यूटी इसको कैसे पेमेंट करना है? स्टैम्प ड्यूटी जहाँ जहाँ एग्जीक्यूट होगा सर, जहाँ जिस स्टेट में है वो उसके हिसाब से, उसके स्टैम्प एक्ट के हिसाब से करना ठीक पड़ेगा। है। हाँ, चलिए, अगर इसको चेन्नई में आपने एग्जीक्यूट करा लिया, तो बाकी जगह स्टाम्प पेमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी जगह की स्टाम्प ड्यूटी इससे कम ही है। करेक्ट। यस। अब अगर आपने यूपी में कराया और एमपी में कराया, तो आपको कितने का स्टाम्प एक्स्ट्रा लगाना है? 300 का डिफरेंस अमाउंट। और अगर यस। आपने फिर से चेन्नई में कराया, तो आप 400 तो पेमेंट कर ही चुके हो, अभी कितना और पेमेंट करना है आपको? 200। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट डिफरेंट स्टेट में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जो भी डिफरेंस स्टाम्प ड्यूटी है वो आपको स्टेट में देनी पड़ेगी। लेकिन अगर स्टाम्प ड्यूटी कम है तो आपको वापस नहीं मिलेगा, कि ये नहीं कि अगर वहां पर
आपने एक जगह 800 का कराया है, दूसरी जगह 400 स्टाम्प ड्यूटी है, तो आपको 400 वापस मिलेगा नहीं। ओके, ओके सर। ठीक। चलिए, अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ यूएसए में, आपका डॉक्यूमेंट साइन हुआ कहाँ पे, यूएसए में। मान लीजिए वो कोई बंदा है, बहुत बड़ी पार्टी है, आपने उसको भेजा कि ये लोन डॉक्यूमेंट साइन करना है, तो ये बताइए किसके सामने साइन करेगा? आपका ऑफिशियल ऑब्वियसली हो सकता है इंडियन यस। एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी के पास ही जाकर के साइन करेगा, और वहां से साइन होने के बाद ठीक वहीं से वो डॉक्यूमेंट वापस कहाँ भेजा जाएगा? इंडिया में। इंडिया। अच्छा ये बताइए, स्टैंपिंग करा के भेजना है या स्टैंपिंग आने के बाद भेजना है? देखिए, स्टैंपिंग करा के डॉक्यूमेंट नहीं भेजा जाता, ठीक है। आपका वहां पर कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर डॉक्यूमेंट के साथ है, करा के भी भेज दिया तो दैट इज ओके, क्योंकि स्टैंपिंग ऑलरेडी हो गई है। बट आप वहां पर आपके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा? वो इंडियन एम्बेसी में। वहां से ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा इंडिया में, जिस दिन इंडिया में रिसीव होगा। मान लीजिए 1 जनवरी को रिसीव हुआ, उसके 3 मंथ्स, 3 मंथ्स लिखा हुआ है। 3 मंथ्स मतलब एक वन एक फोर एक चार टू दो हजार जीरो चौबीस हाँ, यस, 1/4/2024। यस। यस। उसके इतने दिन के अंदर आपको अप्रोप्रिएट स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट करना है। तो अप्रोप्रिएट स्टाम्प ड्यूटी कहाँ पेमेंट करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट को? जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, और जहां पर आपने एक तो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराया, तो कहाँ पेमेंट करेंगे? जहाँ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करा है। चलिए, मैं कह रहा हूं आपने एमपी में पेमेंट कर दिया, तो क्या कोई गलत किया क्या? नो आइडिया सर। नहीं, आपका बैंक अगर एमपी में है, आप वहां से प्रोसेस कर रहे हैं, एमपी में पेमेंट कर दीजिए। स्टाम्प ड्यूटी प्रॉपर लगनी चाहिए, ठीक है। और अगर यस। वेरी स्पेसिफिक है, ठीक है, वेरी स्पेसिफिक है कि आपको जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, मान लीजिए रजिस्टर्ड ऑफिस है चेन्नई में, ठीक है, आपका ब्रांच भी चेन्नई में है, आपको नोटिस चेन्नई में भेजना है, तो आपका कोर्ट केस भी कहाँ चलेगा? चेन्नई की कोर्ट में चलेगा। तो अगर ये कोर्ट फीस है तो उसकी ज्यूरिडिक्शन में पेमेंट कर दीजिए, तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। चलिए, ये रामसर कन्वेंशन किसी को पता है? इससे एक आइडिया लगेगा कि आपको अगला क्या पढ़ना है। नो सर। देखिए, अच्छा, COP20 पता है? COP20 पढ़ा? नो सर। COP20। अच्छा, ये अभी अभी सब लोग ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस पे, और इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, ठीक है, टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर राइज पे, ठीक है, इस पे जो मीटिंग्स हो रही हैं। अच्छा, ये इतनी बात मैं बता रहा हूँ, देखिए, फाइनेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, ठीक है, करंट अफेयर्स में, और आरबीआई सर्कुलर, ठीक है, और कोर बैंकिंग, ये तो पार्ट ही है, लेकिन मेजर पार्ट आपके इसका भी रहेगा, करंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये इवेंट्स पढ़िए, ये इवेंट है ना यस। जिसमें मोदी जी गए थे, ये मेलोडी वाला उसी पे वायरल हुआ था क्या? वही मीटिंग थी ना, जो इटली के पीएम और मोदी का सेल्फी वायरल हुआ था? ठीक है, हमें लग रहा है आप लोग कुछ ज्यादा ही अच्छे बच्चे हो गए हो, कुछ पता नहीं है। ठीक, ये चीजें पढ़िए। करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है, लेकिन अब बहुत सारी स्कीम चल रही है, तो उसको नहीं पढ़ना है।
नेशनल लेवल पे कोई चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज हो रही है, तो वो आपको पढ़ना ही है, उसको पढ़िए। केवल बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी वो तो मेजर पोर्शन है, बट दिस इज आल्सो बीइंग आस्क्ड। मैंने पहले भी बताया था, दिस इज लाइक अ पीओ पेपर विद स्पेशल फोकस ऑन कोर बैंकिंग पोर्शन, बैंकिंग ऑपरेशंस, आरबीआई सर्कुलर्स, तो वो आपको पढ़ना ही है। तो अभी आपको कुछ आइडिया लगा क्या कि व्हाट यू नीड टू स्टडी मोर? अभी बहुत टाइम है आपके एग्जाम में, बहुत वेरी क्लोज नहीं है एग्जाम। अगर आप पढ़ोगे तो एक दिन में एक मंथ का आप कवर कर सकते हो, और आपको यस सर। याद करने का जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे, इफ यू आर थिंकिंग दैट इतना कैसे याद होगा, ठीक, याद नहीं करना है। मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, आपको याद नहीं करना है, आपको जस्ट उसको पढ़ के जाना है। आपको ऑप्शन में वो दिख जाएगा कि मैं यही पढ़ा था, करेक्ट यही चीज पढ़ा था, इसी से रिलेटेड था, हो जाएगा। आपको याद नहीं करना है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि क्या एक्स्ट्रा चीजें आपको पढ़नी है, व्हाट यू नीड टू स्टडी मोर। यस सर। हाँ, तो ये इसीलिए पूछा गया था क्योंकि ये कन्वेंशन क्या है, वेटलैंड्स पे। वेटलैंड्स में ये स्पेशली क्या है रामसर, ये ईरान की एक सिटी है रामसर, ईरान में है। ठीक है, ये 1971 में आया था इंडिया में, आई थिंक 1975 में इसको लागू किया गया था। ये क्योंकि रामसर में हुआ था, इस वजह से इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। जैसे वियना है ना, वियना कन्वेंशन, ठीक है, वियना में हुआ था, तो उसके प्लेस पे इसका नाम रखा गया है। ये एक्चुअली इकोसिस्टम प्रोटेक्शन के लिए है। इकोसिस्टम मतलब वेटलैंड्स से, वेटलैंड से मतलब ये है कि जैसे कोस्टल एरियाज हो गए महाराष्ट्र के, ठीक है, चेन्नई का भी एरिया है, कोस्टल एरिया है, या पोन्ड्स हो गए, झील हो गई, तालाबें हो गई, ये वेटलैंड्स में आते हैं। ठीक है, इनको प्रिजर्व करने के लिए और इनका सस्टेनेबल यूज के लिए इस कन्वेंशन का सिग्निफिकेंस है। केवल यही पूछा ही गया था। मुझे तो ये भी पूछा गया था, और एक लड़के ने तो ये पूछा था, सर ये पूछा था कि रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो रामसर ईरान की सिटी है, तो वहां पे कर सकते हो। और ये किससे रिलेटेड है, तो ये वेटलैंड्स प्रोटेक्शन मींस एक्चुअली इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट, NSFI, किसी को पता है क्या NSFI है? ये क्यों पूछा गया था ये भी बताऊंगा आपको, एक रीजन पता चलेगा कि ये चीज क्या है, व्हाई इट वाज वास्ट। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर आप नोटबुक रखे हो तो नोट करते चलिए, जिस तरह से बताया जा रहा है और आपको किस तरह पढ़ना है। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल, अच्छा अभी COP20 की बात हुई थी, COP20 किस लिए है, किसी को पता है? ग्रीन हाउस इम्पैक्ट के, ठीक है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है पोल्यूशन के वजह से, उस उसके बेस के उसके लिए ये क्लाइमेट कॉप क्लाइमेट चेंज के ट्वेंटी लिए सर। हाँ, क्लाइमेट चेंज के लिए ये किया गया था। तो अभी आर यू गेटिंग दैट व्हाट आर सम इम्पोर्टेंट अदर थिंग्स यू नीड टू स्टडी? इससे थोड़ा आइडिया लग रहा है कि नहीं पेपर से आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें क्या पढ़नी है अभी? यस सर। पंकज, साहिल, 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 आर यू Yes, देयर? yes, sir. Yes, Are sir. you get are you getting that what you need to some more things you need to study Yes, sir. related to current affairs? या करंट फाइनेंशियल और करंट इवेंट्स मीटिंग्स ये सब भी पढ़ना Yes, है yes, सर। yes, yes, yes. स्पेशली मीटिंग्स कौन से पढ़ना है? जैसे कि ये देखिए, ये जो मीटिंग हुई है, रामसर हो गया, COP20 हो गया, ये ग्लोबली सभी कंट्रीज को इफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है इसकी, इसलिए पढ़ना है। इस थीम पे आपके पास जितने भी चीजें हैं, और 1 डे से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आप काम भी करते हो, आप 2 आवर्स कोई भी लेकर के बैठोगे PDF। और अगर देखो, मेकिंग करंट अफेयर्स PDF इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज आई ऑलरेडी गिवन यू नंबर ऑफ PDFs in which current affairs is already included. For other things, a number of materials freely available on any number of sites, but it is too heavy.
माई जॉब इज टू डायरेक्ट यू व्हाट यू नीड टू स्टडी। आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और जो मास्टर बुक हमने शेयर की है, करंट अफेयर से रिलेटेड शेयर की है, एग्रीकल्चर स्कीम से रिलेटेड भी उसमें सब है। तो आपको वो बुक एवरी डे मीन्स आपको खत्म ही करना है उसे। आपको आई एम नॉट सेइंग दैट यू लर्न इट बाय हार्ट, बट आई एम एडवाइजिंग